اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناجائز ڈیمانڈ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، ماں باپ کی تکلیف کو کبھی نظر انداز مت کرنا، کیونکہ یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ناظرین، جہاں سے دعوت نہ دی گئی ہو وہاں کبھی مت جانا، کیونکہ خودداری اور خود کی عزت بہت ضروری ہے۔ میٹھی چیز کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قرض میں مبتلا رہے گا۔ بے شک یہ عمل ادب کے خلاف ہے، لیکن اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لی اس کو نہ تو زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 42 سے 43 تک اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت اور 2 عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگل لے، انشاءاللہ شوگر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ جب کہیں مہمان بن کر جاؤ تو کھانے کو کبھی برا نہ کہو، کیا پتا میزبان کا اس میں کتنا وقت اور مال خرچ ہوا ہو، جو دونوں بہت قیمتی ہے۔ مشکل چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھا جاؤ۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کر لوٹو۔ ماں باپ سیڑھیاں نہیں ہوتے کہ جن پر چڑھ کر ہم بلند ہو جائیں اور پھر انہیں بھول جائیں۔ ماں باپ تو بچوں کی ڈھال ہوتے ہیں اور ایک ایسا درخت ہوتے ہیں جو بوڑھا ہو کر چاہے پھل نہ بھی دے لیکن سایہ ضرور دیتا ہے۔ سیب کو کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہے۔ جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ گلے کے درد کے لیے گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلانے سے بہت طاقت بڑھتی ہے۔ مسور کی دال کھانے سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو مسور کی دال کثرت سے کھاتا ہے ان کو جلد رونا آ جاتا ہے۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کریں، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، مگر باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا، باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا جوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر حلال رزق کماتے ہوئے گھس جاتا ہے۔ ناظرین، پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دے، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہوتا ہے۔ چائے کا ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور یہ پیٹ کی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ باورچی خانے میں کھڑکیاں اور دروازوں میں اگر چنٹیاں ہو جائیں تو نیبو کا رس نچوڑ دے، چنٹیاں بھاگ جائیں گی۔ پالک ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی دور کرتی ہے۔
हरी सब्जियां खाने से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी आ सकती है। काले जीरे को कुचलकर फिर गर्म पानी में शामिल करके पीने से गैस की शिकायत दूर हो जाती है। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ भी देख लेना, तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा फ्यूचर बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। नाजरीन, जिन लोगों को गले का टोंसिस हो, गले में दर्द रहता हो, वो शहतूत खाएं। अगर शहतूत ना मिल सके तो शरबते तूत सियाह का इस्तेमाल करें। घर में अगर नीम का पेड़ मौजूद हो तो इससे भी रिस्क बढ़ जाता है। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, आपके रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी। खाना खाने के बाद बर्तन को उंगली से साफ करना रिस्क में बरकत लाता है। जिस घर में लोग सोने से पहले सर के तेल की मालिश करें, वो लोग ज़हीन होते हैं। जिस घर में ऊंची आवाजें और कहकहा लगाकर बातें की जाए, वहां फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में रोटी का कम और फलों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए, वहां बीमारियां नहीं आती। 50 साल वाली औरत टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करे, सब्जी में या सलाद में। बूढ़ी औरत भी अगर जवान रहना चाहती है तो वो ठंडी चीजें बहुत कम खाया करे। दूध को गहरा करना है तो उसमें चंद दाने किशमिश के डाल दो, फौरन गाढ़ा हो जाएगा। मां बाप के साथ तुम्हारा बर्ताव एक ऐसी कहानी है जो लिखते तो तुम खुद हो, लेकिन पढ़कर तुम्हारी औलाद सुनाती है। पालक पट्ठों को मजबूत करती है। मिश्री खाने से याददाश्त तेज हो जाती है। रोजाना सुबह लहसुन का तेल कमर पर लगाने से कमर के मोहरे कभी खराब नहीं होते। सुबह उठकर बादाम खाओ, याददाश्त बढ़ जाएगी। नींद ना आए तो पानी के अंदर जीरे को जोश देकर पी लो, फौरन सुकून की नींद आ जाएगी। करेले की सब्जी खाओ, सेहतमंद रहोगे। बदन में अगर एलर्जी छिड़ जाए तो फौरन नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लो, एलर्जी खत्म हो जाएगी। रोटी के बाद एक नीम का पत्ता चबाने से पेट दर्द दूर होगा और रोटी जल्द हजम होगी। वालिदैन के साथ जुल्म और बदसलूकी 2 ऐसे गुनाह हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देता है। नाजरीन, हैज और लिकोरिए की बीमारी की वजह से बांझपन लाहिक हो सकता है। बांझ औरत को बकरे का गोश्त खिलाएं, अल्लाह ने चाहा तो बांझपन दूर हो जाएगा। अखरोट भी बांझपन की बीमारी दूर करने में मददगार है। पिस्ते का इस्तेमाल करो, दिल की धड़कन कंट्रोल में रहेगी। नाश्ते में रोजाना अंडा इस्तेमाल करने से मोटापा जल्दी कम हो जाएगा। ज्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा डबल हो जाता है। ज्यादा गुस्सा कुव्वते मुदाफियत यानी इम्यूनिटी को खत्म करता है। अगर जवानी वापस चाहते हो तो अदरक के उबले हुए पानी को चेहरे पर भांप लो। टमाटर रोजाना खाने से दिल की नाली बंद नहीं होती। शहद में अनार शामिल करके खा लेने से बदन की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर जल्दी बुढ़ापा नहीं लाना चाहते तो खाने में पिसी हुई अदरक खाया करें। खाली पेट सोने से परहेज करें क्योंकि ये उम्र में कमी करता है। गर्मियों में नीम गर्म पानी पीने वाले लोगों को कोई भी बीमारी छू नहीं सकती। नाजरीन, अगर छींकें ना रुक रही हो तो खुश्क धनिया हाथों पर मसल कर हाथों को सूंघ ले। ख्वाब में बकरी को देखो तो रिस्क आता है। जो लोग अपने मां बाप के लिए दुआ करना छोड़ देते हैं तो उनके लिए रिस्क रोक दिया जाता है। नाजरीन, गाय का दूध कैंसर से महफूज रखता है। अगर पट्ठों को कुव्वत देनी है और मजबूत रखना है तो महीने में 2 बार बकरे के पाए खाओ। चेहरे पर खीरा रगड़ने से
चेहरे की झुर्रियां मुस्तकिल तौर पर खत्म हो जाती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम जब कोई चीज अपने वालिदैन को दो तो इस तरह दो कि जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने कुछ पेश करता है। नाजरीन, बदन में ताकत पैदा करने वाली चीजों में हल्दी वाला दूध रोजाना इस्तेमाल करें। बदन में बेपनाह ताकत पैदा करनी है और साथ में बीमारियों से महफूज रहना है तो इन बातों पर जरूर अमल करें। दार चीनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। थोड़ा सा शहद दूध में डालकर पी ले। दूध में सौंफ शामिल करके पी लिया करें। हर दूसरे दिन साबूदाना जरूर खाएं। दही में लहसुन डालकर खा लिया करें। अपने घर के कोनों के अंदर या रज्जाक 10 मर्तबा पढ़कर दम कर दें। इससे रिज्क बढ़ जाता है और घर में बरकत आ जाती है। बुजुर्ग हजरात बयान करते हैं कि जिस घर में पौधों को पानी नहीं मिलता उस घर से रिज्क कम हो जाता है। नाजरीन, कच्ची गाजर हुस्न पैदा करती है। अगर बुखार ना टूट रहा हो तो मरीज को गुड़ को पानी में शामिल करके पिला दे। बुखार कुछ देर में टूट जाएगा। अंडे की जर्दी बालों पर लगाने से बाल चमकदार और सिल्की हो जाते हैं। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, वरना दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अल्सर के जख्म को दूर करने के लिए खजूर निहायत मुफीद है। नाजरीन, ये नुस्खा आजमा लो, इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। काली मिर्च साबुत 100 दाने, हरी इलायची 100 दाने, नीम के पत्ते 100 अदद, बादाम 100 गिरिया और काले चने भुने हुए 1 पाव। नीम के पत्तों को धोकर खुश्क कर लें और इन तमाम चीजों का कूट कूट कर पाउडर बना लें। दिन के किसी भी वक्त आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह शिफा नसीब होगी। टिश्यू पेपर में अजवाइन को लपेटकर सूंघ लेने से सर का दर्द ठीक हो जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तंगी में खैरात करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत हुए माफ कर देना बेहतरीन नेकी है। आंखों पर अजवा खजूर का छिलका मसल देने से आंखों की बीनाई तेज हो जाती है। जौ का पानी पीने से हड्डियां मजबूत हो जाती है। किशमिश खा ले, थकावट दूर हो जाएगी। गाजर का रस चेहरे पर लगाकर सो जाने से चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। अगर तुम्हारी मां तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरने लगे तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों मगफिरत का दरवाजा बंद कर दिया। सूरह फातिहा पढ़कर पेट पर दम करने से पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर हर वक्त हाथ ठंडे रहते हो तो जान लो कि आप में खून की कमी है। चावल के ऊपर पानी पीने से आपका पेट बाहर आ जाएगा। चेहरे को पानी से गीला करके उस पर फिटकरी से हल्का हल्का मसाज करें। इससे चेहरे पर दाने खत्म हो जाएंगे। गन्ना हाजमे के लिए एक जबरदस्त चीज है। अगर कुछ काम कर लेने के बाद थकावट महसूस हो रही हो तो पुदीने के पत्ते चबा लिया करो। अपनी जिल्द पर अपने हाथ से चुटकी काटने से सुस्ती खत्म हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ख्वाब में सफर करता देख रहे हो तो आपके घर में बहुत जल्द दौलत आने वाली है। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। कबूतरी का अंडा दिमाग को तेज करता है। रोटी को चबाकर खा लेने से कभी पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। एक ही सांस में पानी पीने की आदत से मैदे में जख्म बन जाते हैं। बारिश का पानी बांझ औरत को पिलाने से बांझपन की बीमारी खत्म हो जाती है। माना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। या रब, हर एक की मां को सदा सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।